Hello everyone. Today we will be discussing the 100 MCQs and assertion reason questions of chapter number 2, that is the origin and evolution of the earth. So first of all, I would like to request you to count your marks and tell us in the comment section below. So the first question is, which hypothesis considered that planets were formed out of a cloud associated with a youthful sun? So किस hypothesis के according जो planets थे वो एक cloud से form हुए थे जो कि youthful sun के साथ associated था. Planetismal hypothesis, binary theory, nebular hypothesis या फिर expanding universe hypothesis. So वो थी nebular hypothesis. According to which hypothesis planets were formed when a wandering star approached the sun and separated materials from it? So किस hypothesis के according जो planets थे वो तब form हुए थे जब एक wandering star ने sun को approach किया था और उससे materials को separate कर दिया था. So वो थी planetismal hypothesis. Who proposed the nebular hypothesis? Nebular hypothesis को किसने बनाया था? वो थे Immanuel Kant. Arrange the following in correct order. Nebular hypothesis, binary theory, Big Bang theory, planetismal hypothesis. So सबसे पहले थी हमारी nebular hypothesis, उसके बाद थी planetismal hypothesis and उसके बाद थी हमारी binary theories and last में थी हमारी third वाली Big Bang theory. So इसका correct option होगा B वाला. When was the nebular hypothesis revised for the second time? Nebular hypothesis को second time कब रिवाइज किया गया था? So 1950 में इसको second बार रिवाइज किया गया था. Who proposed the Big Bang theory? Big Bang theory किसने बनाई थी? So Big Bang theory Georges Lemaitre ने बनाई थी. ये आपकी बुक में नहीं है, so please add this. What is the other name for the Big Bang theory? Big Bang theory का दूसरा नाम क्या है? So Big Bang theory का दूसरा नाम है expanding universe hypothesis. Who provided the evidence for the expanding universe? Expanding universe का जो evidence था वो किसने provide किया था? So एडविन हब्बल थे जिन्होंने evidence provide किया था कि universe expand हो रहा है. What was the temperature and density of the tiny ball? जिस tiny ball से जो universe है वो बना था उसका जो temperature है और जो density है वो क्या थी? So उसकी infinite temperature और density थी. What was the volume of the tiny ball? उस tiny ball की volume कितनी थी? So वो बहुत ही ज़्यादा छोटी थी इसलिए unimaginably small. When did the Big Bang take place? Big Bang कब हुआ था? So Big Bang 13.7 billion years पहले हुआ था. How much time after the Big Bang the first atom began to form? Big Bang के कितनी देर बाद जो first atom था वो बनना शुरू हुआ था? So उसके 3 मिनट बाद वो बनना शुरू हुआ था. Which of the following is true about Hoyle's concept of steady state? Density of matter is constant over time. उसके according जो density थी matter की वो constant थी लेकिन जो universe था वो expand कर रहा था. The distribution of matter and energy was not even in the early universe. What did this lead to? तो जो distribution थी matter और energy की जो early universe था उसमें वो uneven थी. ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हुआ था? इसकी वजह से हुआ था difference in gravitational force. What is the average diameter of galaxies? Galaxies का average diameter होता है 80,000 to 1,50,000 light years. When did the formation of stars start to take place? Stars की formation कब शुरू हुई थी? So 5 to 6 billion years ago जो stars थे वो form करना शुरू हुए थे. What is the speed of light? Light की क्या speed है? Light की speed है 3 lakh kilometer per second. What is the mean distance between the sun and the earth in terms of light year? Light years की term में जो अर्थ है और जो सन है उसके बीच में कितना डिस्टेंस है? सो 8.311 मिनट्स का. What happens when in the final stage of the process of formation of planets? Planets की formation की लास्ट स्टेज में क्या हुआ था? कोहेशन, प्लैनेटिज्मल, अक्रेशन, कोलिजन. सो अक्रेशन जो है वो हुआ था.
When were the planets formed in our solar system? हमारे जो सोलर सिस्टम है उसमें planets कब फॉर्म हुए थे? 4.6 billion years ago. Which of the following is not included in our solar system? हमारे सोलर सिस्टम में इसमें से क्या इंक्लूडेड नहीं है? सन, स्टार्स, जुपिटर, प्लूटो. सो स्टार्स इसमें इंक्लूडेड नहीं है, एक ही स्टार है वो है सन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स? टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स का मतलब क्या होता है? सो अर्थ भी जो है वो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स में ही आता है और इसका मतलब भी होता है अर्थ लाइक. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स? टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स के बारे में क्या बात सच नहीं है? रॉकी तो वो हैं, अर्थ जैसे भी हैं, उनकी डेंसिटी भी हाई है लेकिन उनका एटमॉस्फेयर थिक नहीं है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट गैस जाइंट प्लैनेट्स? गैस जाइंट के जो गैस जाइंट प्लैनेट्स हैं उनके बारे में इनमें से कौन सी बात सच है? लार्ज, रॉकी, हाई डेंसिटी या नन ऑफ द अबव? सो वो लार्ज होते हैं. When was the Pluto considered as dwarf planet? Dwarf planet प्लूटो को कब कंसाइडर किया गया था? So it was in 2006. Which of the following is not a reason for the development of terrestrial planets? Terrestrial planets की डेवलपमेंट में इनमें से कौन सा रीज़न सही नहीं है? क्लोज विग्निटी टू द सन. सो क्लोज थे वो सन के, इसी वजह से सोलर विंड जो है उनका अर्ली एटमॉस्फेयर रिमूव कर पाई थी. हाई डेंसिटी, लो ग्रेविटी या सोलर विंड? सो इसका हाई डेंसिटी जो है वो करेक्ट आंसर है. Who suggested that the earth and the moon formed a single rotating body initially? So सर जॉर्ज डार्विन जो थे उन्होंने सजेस्ट किया था कि जो अर्थ है और जो मून है वो एक सिंगल रोटेटिंग बॉडी फॉर्म करते थे इनिशियली, और धीरे धीरे फिर वो एक डम्बल शेप्ड बॉडी बन गई थी और लास्ट में अर्थ और सन अलग अलग हो गए थे. अकॉर्डिंग टू डार्विन, फ्रॉम वेयर वॉज द मटीरियल फॉर्मिंग द मून सेपरेटेड? पैसिफिक ओशन, नॉर्थ सी, अटलांटिक ओशन, मेडिटेरेनियन सी? सो उनके अकॉर्डिंग पैसिफिक ओशन से जो है वो मून सेपरेट हुआ था. अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट साइंटिस्ट्स द मून वाज फॉर्म्ड एज एन आउटकम ऑफ? प्रेजेंट साइंटिस्ट्स के अकॉर्डिंग जो मून है वो कैसे फॉर्म हुआ था? सो बिग स्प्लैट से वो फॉर्म हुआ था. व्हेन वाज द मून फॉर्म्ड? मून जो है वो कब फॉर्म हुआ था? So it was formed 4.44 billion years ago. Which of the following is not a characteristic of initial Earth? इनिशियल जो अर्थ था, शुरुआती तौर पर जो अर्थ था, उसकी इनमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? ऑक्सीजन एंड हीलियम रिच एटमॉस्फेयर, बैरन सरफेस, रॉकी सरफेस, हॉट सरफेस? सो ये वाला जो ऑक्सीजन एंड हीलियम रिच एटमॉस्फेयर है ये गलत है, क्योंकि जो इनिशियल अर्थ था उसका एटमॉस्फेयर हाइड्रोजन और हीलियम से रिच था. Why did the material inside our earth start getting separated depending on their densities? So जो डिफरेंशिएशन जो है अर्थ की जो सरफेस है उसकी कैसे शुरू हुई थी और क्यों शुरू हुई थी? तो वो कूलिंग की वजह से शुरू हुई थी. When was the earth heated for the second time? ये क्वेश्चन गलत है, सो इसको सही कर लेना. When was the earth heated up for the second time? सो इट वॉज ड्यूरिंग द जाइंट इम्पैक्ट, जब अर्थ दोबारा से हीट अप हो गया था. फ्रॉम द क्रस्ट टू कोर द डेंसिटी ऑफ मटीरियल इंक्रीजेज. विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लीस्ट डेंसिटी? सबसे कम डेंसिटी इनमें से किसकी है? एटमॉस्फेयर, कोर, मेंटल, क्रस्ट? एटमॉस्फेयर की जो डेंसिटी है वो सबसे कम है. द अर्ली एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ? जो अर्थ का जो अर्ली एटमॉस्फेयर था वो उसमें क्या क्या था? ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन? सो उसमें हाइड्रोजन और हीलियम था. विच ऑफ द फॉलोइंग डिड नॉट कंट्रीब्यूट टू द एवोल्यूशन ऑफ प्रेजेंट एटमॉस्फेयर? जो प्रेजेंट एटमॉस्फेयर है उसमें से इनमें से किसने कंट्रीब्यूट नहीं किया था? सोलर विंड्स, वोल्केनिक इरप्शंस, वाटर साइकिल या फोटोसिंथेसिस? सो इन तीनों ने जो है कंट्रीब्यूशन दिया था, पर वाटर साइकिल का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था अर्ली एटमॉस्फेयर के एवोल्यूशन में. द प्रोसेस ऑफ आउटडोर, इट इज़ आउटपोर.
The process of outpour of gases from the interior is called degassing. How old are the oceans? Oceans जो है वो कितने पुराने हैं? So वो 4000 million years पुराने हैं. When did the life begin to evolve? Life जो है वो कब evolve होना शुरू हुई थी अर्थ पर? So it was 3800 million years ago when the life started to evolve. Which type of reaction was the origin of life? जो origin of life था वो किस टाइप का रिएक्शन था? तो वो एक केमिकल रिएक्शन था. The microscopic structures found in fossils is closely related to. जो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर जो पाए गए थे फॉसिल्स में वो किससे सबसे ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड हैं? ब्लू एल्गे से. Assertion is terrestrial planets could not hold the escaping gases. जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स थे वो शुरू में जो एस्केपिंग गैसेस हैं सोलार विंड्स की वजह से उसको होल्ड नहीं कर पा रहे थे. सो उसका रीज़न बता रखा है, उनके पास लो ग्रेविटी थी. सो ये दोनों ही सही हैं और जो असर्शन जो रीज़न है वो असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है. सो इसका ऑप्शन आएगा ए. Assertion is the microscopic structure closely relate to the present form of blue-green algae, and the reason is record of life has been found in rocks in the form of fossils. So जो reason है वो assertion की correct explanation नहीं है, but ये जो दोनों हैं वो सही हैं. ठीक है. So इसका ऑप्शन आएगा, correct ऑप्शन है इसका बी. 45 वाला है assertion the temperature further decreased causing more condensation and more rains. जो जब ओशंस इवॉल्व हो रहे थे तो टेम्परेचर फिर से डिक्रीज़ हो गया था जिससे और ज़्यादा बारिश और ज़्यादा रेन्स हो रही थी. ठीक है. सो उसका रीज़न क्या बता रखा है कि ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ ओशंस जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रेन वाटर में डिज़ोल्व हो गई थी जिसकी वजह से जो टेम्परेचर है वो फर्दर डिक्रीज़ हो गया था. सो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है. Assertion is galaxies move further and further apart. जो गैलेक्सीज हैं वो दूर दूर जाती जा रही हैं और रीज़न देखा है कि यूनिवर्स जो है वो एक्सपेंड कर रहा है. ठीक है. तो दोनों सही हैं और जो रीज़न है वो असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है. Assertion is the gases did not condense in Jovian planets and the reason is given that they were formed at quite a distant location. सो जो गैसेस थी वो कंडेंस हुई थी जोवियन प्लैनेट्स में. ठीक है. ऐसे नहीं है कि वो कंडेंस नहीं हुई थी. कंडेंस नहीं होने वाला केस था हमारे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स का. सो इसमें जो असर्शन है वो रॉन्ग है. सो इसका करेक्ट आंसर आएगा फिर डी वाला. द असर्शन इज गिवन दैट विद इन 3000 ईयर्स फ्रॉम द बिग बैंग एटॉमिक मैटर बिगैन टू फॉर्म. 3000 ईयर्स के अंदर जो फर्स्ट एटॉमिक मैटर था वो बनना शुरू हो गया था और रीज़न दे रखा है कि जो टेम्परेचर था वो इंक्रीज़ किया था. सो टेम्परेचर इंक्रीज़ बाद में कैसे हो सकता है? जो जैसे जो बिग बैंग हुई थी उस टाइम जो टेम्परेचर था वो बहुत ज़्यादा था और उसके बाद वो धीरे धीरे डिक्रीज़ होना शुरू हो गया था. ठीक है. सो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा सी. जो असर्शन है वो सही है लेकिन जो रीज़न है वो गलत है. द गैलेक्सीज आर एक्सपेंडिंग. जो गैलेक्सीज हैं वो एक्सपेंड कर रही हैं. ये ट्रू है या फॉल्स है? तो गैलेक्सीज जो है वो एक्सपेंड नहीं कर रही हैं. जो यूनिवर्स है वो एक्सपेंड कर रहा है. गैलेक्सी दूर दूर हो रही, गैलेक्सीज जो है वो इस वजह से दूर दूर हो रही हैं. ठीक है. सो ये फॉल्स है. विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन. इनमें से सबसे शॉर्ट ड्यूरेशन किसकी है? एरा, पीरियड, ईयंस या इपोच. सो इपोच जो है वो उसकी सबसे शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन है फ्रॉम द फॉलोइंग. वीडियो विल बी कमिंग सून. Till then, bye bye. Don't forget to subscribe and hit a like to the video.